Hello students, myself Sunil. बी फार्मेसी सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, इसकी फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम जो टॉपिक कवर करेंगे उनके नेम हैं नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। और नंबर कन्वर्जन जो हम करने वाले हैं वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन और ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम। Number system. A set of value used to represent different quantities is known as number system. For example, a number system can be used to represent the number of a student in a class or number of viewers watching a certain TV program. Again, number system are the technique to represent number in the computer system architecture. Every value that you are saving or getting into computer memory has a defined number system. The digital computer represents all kind of data and information in binary numbers. It includes audio, graphics, video, text, and numbers. The total number of digits used in a number system is called its base or radix. Computer architecture support following number system. First, binary number system. Second, octal number system. Third, decimal number system. Fourth, hexadecimal number system. Binary number system. Binary number system has only two digits, that are 0 and 1. Every number represents with 0 and 1 in this number system. The base of binary number system is 2 because it has only two digits, which is 0 and 1. All digital computers use this number system and convert the data input from the decimal format into its binary equivalent. Octal number system. Octal number system has only 8 digits from 0 to 7. Every number represents with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 in this number system. The base of octal number system is 8 because it has only 8 digits, which is 0 to 7. Decimal number system. Decimal number system has only 10 digits from 0 to 9. Every number represents with 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 in this number system. The base of decimal number system is 10 because it has only 10 digits. Each number can be used individually or they can be grouped to form a numeric value as 18, 35, 95, 152. Hexadecimal number system. A hexadecimal number system has 16 alphanumeric values from 0 to 9 and A to F. Every number represents with
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, and F in this number system. The base of hexadecimal number system is 16 because it has 16 alphanumeric values. Here A is 10, B is 11, C is 12, D is 13, E is 14, and F is 15. In short, binary number system has two numbers, which is 0 and 1. In octal, we use 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In decimal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9. In hexadecimal, we start from 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Then we change 10 into A, 11 into B, 12 into C, 13 into D, 14 into E, and 15 into F. सिस्टम का जो अगला टॉपिक है वो है नंबर कन्वर्जन। नंबर कन्वर्जन में हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। हमें एक डेसिमल नंबर गिवन होगा, उसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। The method of converting decimal to binary is repeated division method. इस मेथड को हम रिपीटेड डिवीजन मेथड के नाम से भी जानते हैं। इस कन्वर्जन को करने के लिए हमें रूल जो फॉलो करने होंगे, नंबर 1, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस 2। हमें जो आपका डेसिमल नंबर दिया गया है उसे 2 से डिवाइड करना होगा। Write down the remainder and divide the quotient by 2। जब आप भाग दे देते हैं तो उसके बाद आपको उसका कितना जो है भागफल है और कितना जो उसका शेषफल है जो कि रिमाइंडर है उसको हमें लिखना होगा। थर्ड, रिपीट स्टेप 2 टिल द क्वोशिएंट इज 0। आपको सेकंड स्टेप रिपीट करते रहना है जब तक कि आपका एंड में 0 ना आ जाए। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक नंबर लेते हैं 100 जो कि एक डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर के बेस में हमेशा 10 लिखा जाएगा। इसे हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर में। हम जानते हैं बाइनरी नंबर में सिर्फ 2 डिजिट होती है, 0 और 1। 100 जो कि एक डेसिमल नंबर यहाँ दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 को लिखते हैं और इसमें 2 का डिवाइड करेंगे। 100 में 2 का जब डिवाइड किया जाता है तो यह 50 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर रहेगा आपका 0। अगेन 50 में 2 का डिवाइड करेंगे, इस बार यह 25 आएगा और रिमाइंडर रहेगा 0। अगेन 25 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 25 नहीं आते हैं तो यह 12 टाइम्स जाएगा और हमारे पास रहेगा 24। 25 में से 24 माइनस करेंगे, 1 आएगा और ये 1 रिमाइंडर के तौर पे हम यहां लिख देंगे। अगेन 12 में 2 का डिवाइड करेंगे, इस बार यह 6 टाइम जाएगा और रिमाइंडर रहेगा 0। अगेन 6 में 2 का डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, 3 को हम यहां लिखते हैं
और जो रिमाइंडर रहेगा 0 वो हम यहाँ लिखेंगे। 3 में अब 2 का फिर से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 3 नहीं होता तो ये 1 टाइम जाएगा और जो रिमाइंडर रहेगा 1 वो हम यहाँ लिखेंगे। अब क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता इसलिए हम इस 1 को यहाँ लिख देंगे और अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ेंगे, डाउन टू अप पढ़ेंगे। नीचे वाले हिस्से को हम MSB कहते हैं और यहाँ ऊपर जो है हम कहते हैं इसे LSB। MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो हम इसको जब लिखेंगे तो जो हमारा गिवन डेसिमल नंबर था वो 100, ये कन्वर्ट होकर के आ जाएगा 11000100। देखिए अब इसमें ध्यान से हमने जो लिखने का क्रम रखा है वो नीचे से ऊपर की तरफ रखा है। सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, उसके बाद सेकेंड 1, उसके बाद 00, उसके बाद 1 0 एंड 0। बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है इसलिए हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो यह आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हुआ। अभी जो हमने सवाल किया अगर उसमें दशमलव आ जाए तो हम किस तरीके से सवाल को करेंगे। द फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड द कैरी इन द इंटीजर पोजीशन इज रिटर्न आफ्टर ईच मल्टीप्लिकेशन। हम एक सवाल लेते हैं 0.4375, ये एक डेसिमल नंबर है, हमें इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले हम जो 0.4375 है इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 क्रॉस 0.4375 करते हैं तो हमारे पास आता है 0.875। डॉट से पहले जो 0 है इसे हम अलग से लिख देंगे और जो रिमेनिंग हिस्सा है 0.875 इसका फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 क्रॉस 0.875 किया जाएगा तो आपके पास आएगा 1.75। यहां पर हम डॉट से पहले वाला 1 फिर से अलग लिखेंगे और 0.75 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 का 0.75 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपके पास आएगा 1.5। पॉइंट से पहले वाला 1 हम अलग लिखेंगे और 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 क्रॉस 0.5 करने पर आपके पास 1.0 आता है। यहां पर हम 1 को अलग लिखेंगे एंड जो हमारे पास आंसर रहेगा वो आएगा 0111। तो हम इसे किस तरीके से लिखेंगे, अप टू डाउन, और अप टू डाउन लिख करके हम इसे ब्रैकेट में लिख के बेस लगा देंगे 2। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी दशमलव के बाद जब लिखा जाएगा तो नंबर को हम अप टू डाउन पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट नंबर था 0 इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 0, उसके बाद 1, फिर 1 और फिर 1। तो यह आपका जो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हुआ। नेक्स्ट इज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर into decimal number, first multiply each binary number with 2 having the power 0 for last position starting from the right digit. Second, increase the power 1 by 1 with the base as 2. Third, sum up all the products to get decimal number. बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इसको हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं।
1001 ये एक बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी को जब हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें 1 0 0 एंड 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। ध्यान देने वाली बात यह है कि पावर बढ़ते से घटते हुए क्रम में रहेगी और एंड में इन सब का हमें सम करना है। जब हम 2 की पावर 3 करते हैं तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यानी कि 8 आएगा। 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 0 आता है, तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। अगेन यहाँ पर भी 0 आएगा। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1, 1 क्रॉस 1 यानी कि 1, 8 प्लस 1 यानी कि 9, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 9। तो 1001 जो कि एक बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल कन्वर्जन होगा 9। For fraction, the weights of the digit position are written from right of the binary point and weights are given as follows: 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, 2 की पावर -5। इस तरीके से हम इस टेबल को आगे बढ़ा सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1011.101 ये एक बाइनरी नंबर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इस डॉट यानी कि दशमलव पे ध्यान देंगे और इससे पहले वाली जो डिजिट है इसे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ देंगे और डॉट के बाद जो 101 है इसे हम 2 की पावर -1, 2 की पावर -2 और 2 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप इनको सॉल्व करिए। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसी तरीके से 2 की पावर 2 इक्वल टू 4, 2 की पावर 1 इक्वल टू 2, 2 की पावर 0 यानी कि इसका मतलब होता है 1, 2 की पावर -1 को आप 1/2 करके लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 को आप 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 2 की पावर -3 को आप 1/2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब 2 की पावर 2 करते हैं यहाँ पर तो आपके पास आ जाएगा 1/4 और यहाँ 2 की पावर 3 यानी कि 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 8। 8 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आ जाएगा 8। 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे या 0 का किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 आता है, या हम 0 लिखेंगे। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करने पर 2, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। नेक्स्ट 1 क्रॉस 1/2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5। 0 का मल्टीप्लाई 1/4 से होगा तो ये यहाँ पर 0 रहेगा। 1 क्रॉस 1/8, जब आप इसको सॉल्व करते हैं यानी कि 1/8 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.125। 8 and 2 10, 10 plus 1 11, 11 and 0.5 और 0.125 इनका सम करेंगे तो 0.625, तो ये आपके पास आ जाएगा 11.625। ये आपका जो है एक डेसिमल नंबर आ गया है। तो ये आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन हुआ। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लाई ईच ऑक्टल नंबर विथ 8 having the power 0 for last position starting from the right digit. Increase the power 1 by 1 with base is 8. Sum up all the products to get decimal number. Octal to decimal conversion. ऑक्टल टू डेसिमल
कन्वर्जन को समझने के लिए हम एक सवाल लेते हैं। 24 यहाँ पर एक ऑक्टल नंबर है, हम इसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। किसी भी ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 इस तरीके से इनका मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ इस तरीके से। यहां पर हमारे पास जो गिवन नंबर है वो है 24, तो हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से। अगर यहां पर 3 नंबर होते तो हम 8 की पावर 2 का भी यूज करते। टू क्रॉस 8 की पावर 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 और 4 क्रॉस 8 की पावर 0 जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो 4 क्रॉस 1 जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा 4। 16 प्लस 4 20, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो है 20। यह एक डेसिमल नंबर है। जब हम 24 को, जो कि एक ऑक्टल नंबर है यहां पर, जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा 20। हम इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सवाल और लेते हैं। 14.74। अब हमारे पास जो ऑक्टल नंबर है वो है 14.74 और इसे हमें डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। पहले वाले सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है? पहले वाले सवाल में हमने दशमलव का प्रयोग नहीं किया है और इस सवाल में दशमलव का प्रयोग हमने किया है। तो किसी सवाल में जब हमें ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है और अगर उसमें दशमलव यानी कि पॉइंट आ जाता है तो हम उसे किस तरीके से करेंगे? दशमलव से पहले वाली जो डिजिट है उसमें प्रोसेस सेम रहेगी और जो दशमलव के बाद जो डिजिट है यहां पर हमारे पास है 74, उसमें हम 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 इससे मल्टीप्लाई करते हुए जोड़ते हुए लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 14.74 जो गिवन नंबर है उसमें 1 और 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 का मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 0 से और 1 का मल्टीप्लाई होगा 8 की पावर 1 से। पॉइंट के बाद 74 जो है इसे हम 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर -1 से और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर -2 से और इन सबको हम जोड़ देंगे। जब हम 1 क्रॉस 8 की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 8 आएगा हमारे पास 8। नेक्स्ट में 4 क्रॉस 8 की पावर 0 है, 8 की पावर 0 का मतलब यहां पर है 1, 4 क्रॉस 1 यानी कि हमारे पास आ जाएगा 4। 7 क्रॉस 8 की पावर -1 है, इसे हम 7 क्रॉस 1/8 लिख सकते हैं, प्लस 4 क्रॉस 8 की पावर -2 को हम 4 क्रॉस 1/8 की पावर 2 यानी कि 8 क्रॉस 8 यानी कि 64 भी लिख सकते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं, इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 8 प्लस 4 इसमें कोई बदलाव नहीं है। 7 क्रॉस 1/8 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.875। अगेन 4 क्रॉस 1/64 को सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 0.0625। अब हमें इन्हें जोड़ देना है तो हमारे पास आएगा 12.9375। तो जो दशमलव से पहले वाला 14 था उसका डेसिमल नंबर आया है 12 और जो 0.74 था उसका आया है 0.9375। तो हमने इसे एक साथ ही लिखा है 12.9375
आपको इसी तरीके से करना है। तो 14.74 जो कि एक ऑक्टल नंबर है, इसका डेसिमल कन्वर्जन आएगा 12.9375। यह आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। थैंक यू।